Jai Hind all. I, Dr. Nisha Singh, Associate Professor, Faculty of Management and Commerce, Swami Vivekanand Subharti University, welcome you all to the workshop on stress management and emotional stability. I, on behalf of Swami Vivekanand Subharti University, wholeheartedly welcome our Honorable Vice Chancellor, Major General Dr. G.K. Thapliyal, sir, respected Pro Vice Chancellor, sir. I extend my heartfelt gratitude to today's esteemed guest speaker, Mitra Prawesh ji, Shri Amritpal Singh Sodhi ji. They are the members of the Maitri Bodh Parivar. A big round of applause for the esteemed guests today. We are really grateful, sir. I welcome the HOIs of the different institutes, the faculty members, and the dear students. It's a formal welcome to you all to the workshop on stress management and emotional stability. In this fast-paced world filled with various challenges and uncertainties, it's crucial to equip ourselves with the necessary skills and strategies to navigate through stress and promote emotional well-being. Today, we have gathered here to delve into the importance of understanding stress, its impact on our daily lives, and most importantly, to explore effective techniques to manage stress and cultivate emotional stability. Before starting this symposium, the combination of science and spirituality, let's invoke Goddess Saraswati and seek her choicest blessing by lighting the lamp. And for that, I would request Honorable Vice Chancellor, sir, respected Pro Vice Chancellor, sir, Mitra Prawesh ji, Mr. Amritpal Singh Sodhi ji, Dr. Rahul Bansal, sir, Dr. Pintu Mishra, sir, along with Bhavna Grover, ma'am, and Sartaj Ahmed, sir, to the dais for lighting the lamp and seeking the choicest blessing of Goddess Saraswati, and would request the student of the fine arts शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति नमोस्तुते. Thank you. Now it's time to honor and welcome our esteemed guest for today's event. I would request Honorable Vice Chancellor, sir, to offer sapling to Mitra Prawesh ji and drape Angavastram as a token of love and regard, as it is a tradition of Swami Vivekanand Subharti University that we offer sapling as a mark of greenery, as a mark of prosperity, and for protecting the environment. A very big round of applause in the honor of esteemed guest Mitra Prawesh ji. I would request our respected Pro Vice Chancellor Dr. Abhay Shankar Gowda, sir, to offer sapling to Mr. Sodhi ji as a token of love and drape Angvastra as a token of regard. Thank you so much, sir. A very big round of applause, audience. They are the members of Maitri Bodh family. Stress management is not only important for physical and mental health, but also to enhance our productivity and performance, improve your relationship and quality of life, along with self-awareness, growth, and resilience. I encourage you all to actively participate, ask questions, and share your experience so that we can collectively learn and grow together. I would request you to approach this workshop with an open mind and a willingness to learn from both scientific research and spiritual teaching. Let this workshop be a stepping stone towards building a healthier relationship with stress and cultivating emotional stability in your personal and professional lives. And with this, I would invite Dr. Rahul Bansal, sir, the convener of the program, for his opening address. ओम श्री परमात्मने नमः। सुभारती में ये परंपरा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जो फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, मगर कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं विच आर नॉट जस्ट फॉर एक रूटीन में नहीं होते, दे आर डन फॉर ए स्पेशल पर्पस। ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है विच हैज़ बीन blessed by Honorable Vice Chancellor
and also by our CEO Madam, Dr. Shalya Raj. उन लोगों ने सर ने स्पेशली इन गेस्ट्स को बुलाया है. दे आर नॉट ऑर्डिनरी स्पीकर्स, दे आर ए पीपल हु आर वर्किंग फॉर वर्ल्ड पीस. ये वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, उसको ये लोग, इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दे आर वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन बियॉन्ड कंट्री फॉर पीस एंड हार्मनी. एंड यू नो पीस एंड हार्मनी बिगिंस विद यू. मेरे अंदर अगर पीस हार्मनी नहीं है, आई कैन नॉट स्प्रेड. वेदर आई टॉक, इफ आई एम नॉट पीसफुल, जो भी मैं बोलूँ अगर मैं पीसफुल नहीं हूँ तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. एंड बिकॉज इन दिस क्राउड, इन दिस हॉल फुल हॉल, ऑल ऑफ यू नीड पीस एंड हार्मनी विद इन यू. अगर आप अंदर से शांत नहीं है, ना तो आप कोर्स अच्छे से पढ़ पाएंगे, ना आप सक्सेस ले पाएंगे, ना आप लोगों को सक्सेसफुल बना पाएंगे. सो दिस वर्कशॉप इज एम्ड एट यू. प्रवेश जी ने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. ऑफकोर्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो लोग भी नेचुरली इसको आगे बढ़ाएंगे. उनका भी स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. Thank you so much, sir. Honorable Vice Chancellor, sir. A big round of applause for sir. His presence really makes the program worthwhil, a precious one. Thank you, sir. जय हिंद. आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हमारे मुख्य वक्ता प्रवेश जी का और सोदी जी का मैं सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप अभी सभी विद्यार्थियों का इस हॉल में स्वागत करता हूं कि आप सब लोग आए और इस लेक्चर को सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. क्यों इस लेक्चर की इतनी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है? वर्ल्ड पीस हम बात करते हैं, बट वर्ल्ड पीस तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका खुद दिमाग में आप खुद पीसफुल ना हो. मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि एक बोतल में, शीशे की बोतल में आपने पानी रखा और पानी के ऊपर मिट्टी डाल दी और उसको हिला दिया, तो कितनी टर्बुलेंस उस बोतल के पानी में होगी कि आप आर पार कुछ भी नहीं देख सकते. शीशे की बोतल के आर पार नहीं देख सकते, वो टर्बुलेंस, क्लैरिटी नहीं है. लेकिन उसी बोतल को आप करीब 15 मिनट एक स्थान पे छोड़ दें, मिट्टी जब सेटल्ड हो जाती है और पानी क्लियर ऊपर आ जाता है, तो आप क्लियरली एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं. तो वो क्लैरिटी तब आती है जब आपका माइंड सेटल्ड हो जाता है, पीसफुल हो जाता है. और वो पीसफुल सेटल्ड माइंड के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं. स्वामी विवेकानंद ने, बिकॉज हमारी सुभारती यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद के नाम से है, तो स्वामी विवेकानंद जब सबसे पहले अपने गुरु के पास गए थे, गुरु तब तक नहीं थे वो, लेकिन किसी ने, उनके दोस्त ने कहा था कि यदि तुम्हें कुछ ज़िंदगी में करना हो तो एक है काली घाट टेम्पल में एक पुजारी हैं, वो बैठते हैं, उनके पास जाके मिलो. तो जब गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो उनका जवाब था, यही तो जानने आया हूँ, मैं कौन हूँ. तो ये मैं कौन हूँ, ये एक बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसको यदि आप जान जाएं तो आपके ज़िंदगी के सारे टेंशन, सारे स्ट्रेस सब खत्म हो जाते हैं. मैं कौन हूँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसको समझने के लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है. उस ज्ञान को, ताकि अपने दिमाग को कैसे एक शांत रखें, और आपके दिमाग के साथ शांत होने के साथ साथ पूरे संसार में शांति कैसे आएगी, इस पे आज जो डिस्कशन हो रहा है. सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको सुनेंगे नहीं बल्कि एब्जॉर्ब भी करेंगे, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएंगे, एंड लेटर ऑन दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू to reach whatever goals you have set in your life. Thank you very much. I wish you all the best. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Today we have with us Miss Mitra Prawesh ji and Mitra Amritpal Sodi ji. Miss Mitra Amritpal Sodi ji is an entrepreneur and he is serving in Mitra both family from last 10 years. But today's esteemed speaker is Mitra Prawesh ji. Mitra Prawesh ji is an alumnus of prestigious Presidency College, Kolkata, with a background in applied economics, has dedicated over a decade to academia, currently serving as an assistant professor in economics, statistics, and data analytics in BML Munjal University and other esteemed institutes in Gurgaon. Prawesh ji's passion for learning extends beyond traditional academic boundaries. Beyond his professional role, Prawesh ji embraces life as a perpetual student, exploring diverse creative avenues. He is an avid visual artist proficient in painting, graphic design, and photography. His creative pursuits
also extends to music, creative writing, and travel. Since its inception in 2013, Prawesh ji has been an integral part of the Maitri Bodh Parivar and Youth for Global Peace and Transformation (YGPT), contributing to various organizational roles. Currently, he spearheads regional development in the Delhi NCR region. His association with Maitri Bodh Parivar has been transformative, leading to a holistic shift in his outlook on life. This transformation has not only impacted his spiritual journey but also his professional and interpersonal relationships, enhancing peace and productivity. Prawesh ji finds joy in sharing his journey and experiences with Maitri Bodh Parivar, highlighting how it has empowered him to overcome inhibitions and embrace a life of contentment. I would invite Mitra Prawesh ji on this dais for his valuable session on stress management. This session will be divided into 3 parts. First, the introduction of the stress, then the strategies to overcome stress, and the Shakti Prabha, the practical exercises how to overcome stress and bring peace in your mind and physical health. Okay, good morning. Good morning. आप लोग को ब्रेकफास्ट मिला होगा ना आज? पक्का किन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया आज? आप लोग ने नहीं लिया ब्रेकफास्ट? भूख लग रहा है आपको? तो जब हम भूख का बात करते हैं ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर. तो एक होता है कि पेट का भूख, वो तो हरदम लगता रहता है ना, हम खाते पेट भर जाता है, एंड दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और जो दूसरा भूख होता है, वो भूख है कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ सीखने का ना. जो फर्स्ट टाइप ऑफ भूख है वो तो नेचुरल है, सबको होता है भूख ना, सबको लगता है भूख, तो इस पेट भी हम भरते हैं. बट उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है एज स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट is to have that hunger to learn. क्योंकि as students मैं अपने आप को देखता हूँ ना, so right now I teach in a college, but I consider myself to be a student. क्योंकि जब आप स्टूडेंट रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आप कुछ सीखने का, एंड एवरी डे एवरी मोमेंट देयर इज समथिंग न्यू दैट यू कैन लर्न. तो मेरा नाम मित्र प्रवेश है. मैं मैत्री बोध परिवार से हूँ. Maitri Bodh Parivar is a socio-spiritual organization. So we do a lot of social events, social activities. बच्चों को पढ़ाते हैं ना, एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, मदर अर्थ के लिए हम काफ़ी सारे क्लीनिंग ड्राइव्स वगैरह करते हैं. इसके साथ साथ वी डू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सेशंस ऑल्सो, जिसमें हम मेडिटेशन सिखाते हैं, हीलिंग सेशंस हम करते हैं, एंड सो ऑन. मैत्री बोध परिवार का जो एक विजन है, दैट इज़ 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 ट्रूथ. जैसे राहुल सर ने बहुत अच्छे से बोला ना कि पूरा जो विश्व है, विश्व को हम एक परिवार के हिसाब से हम देखते हैं. तो इनिशियली जब मैत्री बोध परिवार का शुरुआत हुआ, तो इट स्टार्टेड विद अ ग्रुप ऑफ 7 इंडिविजुअल्स हु फेल्ट दैट वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दिस वर्ल्ड. एंड कहीं ना कहीं आज के दिन में अगर हम देखते हैं, तो मैत्री बोध परिवार के सदस्य पूरे विश्व भर में हैं, एंड ऑल ऑफ अस वी आर कनेक्टेड, वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. बट एक जो कॉमन फैक्टर है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, ये है कि हमें दुनिया को बदलना है. क्या आप खुश हैं? आज दुनिया जैसा है उसे देख के आप खुश हैं ना? सो मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, आई डोंट नो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, या न्यूज़ देखते हैं कि नहीं. अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाहर दुनिया है वो शायद उतना अच्छा नहीं है. एवरीडे जो न्यूज़ भी अगर रीड करते हैं, जो नेगेटिव अनवांटेड चीज़ें वो ज़्यादा है प्रोपोर्शनली एज कम्पेयर टू गुड पॉजिटिव थिंग्स. जब तक बाहर दुनिया में चीज़ें नहीं बदलेगा, तो हम अपने जीवन में कितना भी कोशिश करें, हम नहीं बदल पाते हैं ना. सो मैत्री बोध परिवार का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. एंड जैसे सर ने बहुत अच्छे से बोला कि समवेयर अगर बाहर दुनिया को बदलना है, तो जो शुरुआत है, शुरुआत आप ही से होगा. तो ये मैत्री बोध परिवार के जो फाउंडर है, विजनरी है, ही इज मैत्रेय दादाश्री जी. दादाश्री जी इज अ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन, एंड उनका भी उद्देश्य यही है कि जो बाहर दुनिया में चेंज लाना है, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम यू योरसेल्फ. तो दादाश्री जी सेज, पीस विद इन मी इज पीस विद इन यू, पीस विद इन यू इज पीस विद इन मैनी, पीस विद इन मैनी इज पीस इन नेचर, पीस इन नेचर इज पीस इन द वर्ल्ड. तो अगर बाहर दुनिया में शांति का स्थापना करना है, तो जो शुरुआत है, शुरुआत हमसे ही होगा. क्योंकि जब हम अनुभव करेंगे उस प्रेम को, उस शांति को, तभी जाकर धीरे धीरे हमसे जितने लोग जुड़े हैं, दे विल बी एबल टू एक्सपीरियंस, एंड इवेंचुअली द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस. सो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू एक्सपीरियंस पीस इन योर लाइफ? ना ऑनेस्टली आप रेज कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में सब बल्ले बल्ले सब मस्त है, तो कोई दिक्कत नहीं. बट अगर आपको लगता है
एक कहीं पर भी थोड़ा सा मैं अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, देन दिस इज़ द राइट प्लेस। अब यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कि एक ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं और एक ही चीज़ हम बोल रहे हैं, बट इसके बाद जो टेक अवे रहेगा वो आप सबके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सेशन से क्या लेकर जाएंगे। आपने जो अपना समय दिया है 1.5 घंटे का, एक बहुत प्रेशियस टाइम है ना। स्पेशली आई नो कि शायद आप लोग का काफ़ी सारा वर्कलोड भी रहेगा, प्रोजेक्ट सबमिशंस, असाइनमेंट्स ना। सो आई नो बिकॉज आई ऑल्सो टीच इन अ कॉलेज, बट इफ़ यू आर एबल टू यूटिलाइज दिस टाइम वेल, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस अ बिग शिफ्ट इन योर लाइफ ना। शुरू करने से पहले एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। तो ये स्टोरी है एक शिकारी का। ओके, तो एक शिकारी, उसका जो अपना एक प्रोफेशन है तो ये है कि वो जंगल जाता था और शिकार करता था। बट समय के हिसाब से जितने फॉरेस्ट में जो एनिमल्स थे शिकार करने के, वो कम होते गए और अंत में शिकारी का बस एक ही काम था कि वो जंगल जाता था, वो अलग अलग चिड़ियों को पकड़ता था एंड वो बेच के थोड़ा बहुत जो पैसा था वो कमाता था ना। उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था। तो एवरी डे यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट, नो, ट्राई टू कैच सम बर्ड्स। समटाइम्स ही वाज सक्सेसफुल, समटाइम्स ही वाज नॉट सक्सेसफुल, एंड थोड़ा बहुत जितना गुजारा होता था दैट यूज्ड टू हैपन। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो गांव है, उनके गांव में ना एक बहुत संत पुरुष आए और सब उनको मिलने के लिए गए। एंड इवन दिस हंटर ही ऑल्सो वांटेड टू गो एंड मीट द संत। अब जाएंगे तो सब कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जा रहे थे। बेचारे शिकारी के पास पैसा नहीं था, क्या ले जाएं। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं एटलीस्ट ये चिड़िया को ही मैं एक ले जाता हूँ और गिफ्ट के तौर पे मैं दे दूँगा। तो उनके पास उस समय एक तोता था, तो उन्होंने तोता लेकर गए, तो संत से मिले और उन्होंने वो तोते संत को दे दिए। एंड फिर उसके बाद वो आशीर्वाद लेकर वो वापस चले गए। तो एक हफ्ते के बाद वो फिर जंगल जाते हैं। तो जब जंगल गए तो उनको एक आवाज़ सुनाई दिया जिसकी वजह से वो बहुत विचलित हो गए। जो तोता उन्होंने संत को दिया था, अब संत तो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, राइट। तो उन्होंने सिखाया था उस तोते को, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। और ये सिखा के उन्होंने तोते को छोड़ दिया। अब तोते ने सीख लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। तो उड़ के वापस जंगल चले गए। और जंगल जब वो वापस गए तो उन्होंने ये सबको सिखा दिया, जितने भी तोते थे। तो सबको बोला कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। तो जब शिकारी पहुंचते हैं और देखते कि सब तोते यही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना, तो उनको फिर बहुत बुरा लगता है कि अरे मैंने तो एक अच्छा एक भाव के साथ उस संत को मैंने तोता दिया था, उन्होंने तो मेरा पेट में लात मार दिया ना, कि अभी मैं कैसे गुजारा करूँगा ना। अभी उन्होंने सिखा दिया तो अब कैसे फंसेगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो दुखी होकर वो संत के पास जाते हैं और बताते कि अरे संत, आपने तो ये क्या कर दिया ना, मैंने तो आपको एक भेंट दिया था बट आपने तो कुछ उल्टा ही सिखा दिया, तो मेरा कैसे गुजारा होगा। तो संत उनको बोलते कि आप चिंता मत कीजिए, आप जाके जो आपका कर्तव्य काम है आप करिए। तो वो जाते हैं, जाल बिछा देते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद, चिड़िया आए, फंसे या नहीं फंसे। चिड़िया को सबको तो पता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। क्या हुआ रहेगा आपके हिसाब से, फंसे नहीं फंसे, फंस जाएंगे क्यों ना, करेक्ट। तो कैसे है कि जब वो शिकारी गए, जाल बिछाए, बट उसके बाद भी कितने सारे चिड़िया वो फंस गए जाल में। अब शिकारी को समझ में नहीं आ रही कैसे ना, कि अब सिखाया तो सबको सिखाया था बट ऐसे फंस कैसे गए। तो फिर जब वो गौर से देखते हैं तो क्या था कि जितने भी तोते थे उन्होंने सीखा, जो सिखाया वो संत ने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। बट क्या हुआ, किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया ना। तो इम्पॉर्टेंट जो भी आप चीज़ सीखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज भी हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे शेयर करेंगे, बट आपका इस सेशन के बाद क्या एक्सपीरियंस रहेगा, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट। इज इट ओके, एवरीवन इज विथ मी, प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, ऊपर में जो बैठे हैं, तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन इट्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। आज हम 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आज का सेशन का फ्लो, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस। ओके, सेकेंड विल सी what problems can occur due to stress, and third
हाउ डू वी मैनेज स्ट्रेस? ओके, तो सबसे पहले तो ये पूछना है कि व्हाट इज स्ट्रेस, या इससे भी और सिंपल तरीके से अगर हम पूछें तो क्या आप लोग अपने लाइफ में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस स्ट्रेस? जो हाथ रेज नहीं करे आपको स्ट्रेस नहीं फील होता है? ओके, विल चेंज द क्वेश्चन लिटिल बिट। देखिए, आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जितना आप इंटरेक्ट करेंगे ना, रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है। ओके, सो आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस इन द पास्ट 1 year? यू एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस? मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत कम भी नहीं। ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस लो लेवल ऑफ स्ट्रेस? लो लेवल ऑफ स्ट्रेस। ओके, मतलब आप में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन योर लाइफ, राइट? अब स्ट्रेस किस चीज़ की वजह से हो सकता है? शायद आपके लिए अलग अलग रीजंस हो सकता है ना। फॉर सम एक स्ट्रेस का एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट है, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, उसका स्ट्रेस हो सकता है। किसी के लिए इसका स्ट्रेस हो सकता है कि बिकॉज कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। जो टीचर्स बैठे हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है कि आपको एक रिव्यू हो सकता है ना, अलग अलग चीज़ के कारण स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। स्ट्रेस डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन, बट व्हाट वी कैन डिफाइन इज व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर विच यू हैव स्ट्रेस। तो अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो स्ट्रेस 3 कारण की वजह से हो सकता है। तो पहला चीज़ ये है कि व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ योर कंट्रोल, आप चाहते हैं कि एक तरीके से चीज़ें चले, आपके मुताबिक चीज़ें चलें ना, बट चीज़ें हमेशा आपके मुताबिक नहीं चलता है। आप शायद एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में बैठूंगा तो मतलब बिल्कुल ए ग्रेड मिल जाएगा, 90+ मिल जाएगा, बट शायद जो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। ऐसे हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो लगता है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही वो बिहेव करे, बट ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता है आपके साथ जैसे आप चाहते हैं? हाँ। सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जब आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं तो स्ट्रेस होता है। दूसरा है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेन। आपका जितना फिजिकल कैपेसिटी है या मेंटल या इमोशनल कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है, आपका पढ़ने की क्षमता शायद 50% ही होगा, बट आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको 80% आप एफर्ट लगाएं ना। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि क्योंकि स्पेशली जब हम कॉलेज में रहते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, राइट? अब मेरे फ्रेंड ने एक नया ड्रेस लिया तो मुझे भी लेना है। अब पैसा नहीं है, पैसा ड्रेस में खर्च करूं या लंच में खर्च करूं ना। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसके वजह से भी स्ट्रेस होता है। एंड लास्टली, माई डिमांड्स एक्सीड माई रिसोर्सेज। मैं जितना कर सकता हूं उससे ज़्यादा मेरे तरफ से एक अपेक्षा है। दिस एक्सपेक्टेशन कैन बी बिकॉज ऑफ द टीचर्स, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर एंड सो ऑन। ओके, तो चाहे आप कोई भी एक रीज़न सोचिए जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं हम ये 3 चीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ, अब जब आपको स्ट्रेस होता है तो आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू हैव सम वेज टू मैनेज योर स्ट्रेस और डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट? तो अगर आप स्ट्रेस्ड है ना, तो आपको कैसे पता चलता है कि 2 बहुत सिंपल तरीका है जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस्ड है या नहीं है। तो फर्स्ट, एक आपका फिजिकल एक साइंस है। तो अगर बार बार आप थक जा रहे हैं ना, यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर फीलिंग फटीग्ड ना, या फिर कहीं ना आपके ना गर्दन में दर्द है, शोल्डर में पेन्स है, देन नो दैट, एंड बिना मतलब का अगर ऐसे कुछ पेन्स है, नो दैट यू आर स्ट्रेस्ड। बट इसके साथ साथ कुछ लक्षण आपके माइंड लेवल में भी है, दैट इज यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। आप बार बार चिड़चिड़ आप फील कर रहे हैं, यू आर गेटिंग इरिटेटेड, यू आर गेटिंग अनॉयड, यू आर गेटिंग एंग्री, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो साइंस ऑफ स्ट्रेस। सो इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी वन ऑफ दीज, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं हम इसको ट्रीट करें। कैसा रहता है ना कि जब हम फिज़िकल
तौर पे अगर हम बीमार होते हैं तो इमीडिएट जो करेक्शन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बुखार है तो शायद हम पैरासीटामोल की गोली लेते हैं या फिर किसी से कंसल्ट करते हैं ना। अगर पेट में दर्द है तो उसके लिए भी मेडिसिन लेते हैं। बट जब एक मानसिक तौर पे ना, मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल में एक स्ट्रेस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, हम हेल्प सीख नहीं करते हैं। बट इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी जैसे फिजिकल एलिमेंट को भी अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो बीमार क्रोनिक हो सकता है ना। अगर आपको कहीं पर हाथ में कट हुआ है, अगर उसको प्रॉपर अगर आप बैंडेज नहीं करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो शायद वो जो वुंड है, वुंड और ज़्यादा क्रोनिक हो सकता है। तो ऐसे इट्स इम्पॉर्टेंट दैट कहीं ना कहीं अगर आप ये लक्षण अनुभव कर रहे हैं, इस लक्षण को हम ट्रीट करें। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल टेस्ट, ओके, जिसके द्वारा आप स्वयं को ही पता चल जाएगा कि वेदर देयर इज अ स्ट्रेस और नॉट। ओके, सो दिस वाज डिफाइंड बाय सम साइकोलॉजिस्ट्स एंड ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो आई वांट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि आप सब इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। इज इट ओके, कैन यू पार्टिसिपेट ना? तो देयर आर 10 क्वेश्चंस, बस ये क्वेश्चंस को देखना है एंड इसको रिस्पॉन्ड करना है आपके लिए जो सबसे सही है। ओके, सो यूल नीड योर मोबाइल फोन्स एंड आई विल शेयर अ QR कोड। तो आपके फ़ोन से जस्ट ओपन योर कैमरा एंड स्कैन द QR कोड। हम आपसे ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं, हम आपको थोड़ी देर में शेयर करेंगे। ओके, सो यू कैन स्कैन द QR कोड। अगर नहीं होता है देन यू कैन जस्ट टाइप इन द ID दैट इज़ गिवन ऑन योर ब्राउज़र। अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो आप ये लिंक भी आप टाइप कर सकते हैं अपने ब्राउज़र पे। डन? ओके, so once you've opened it, just fill in the questions. तो please fill with honesty. तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना है। ओके, यहाँ पर शायद आपको 3 स्कोर्स मिलेंगे, या लो लेवल ऑफ स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस एंड हाई स्ट्रेस। तो इनकेस अगर अभी नहीं हो पाया है तो आई थिंक आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने कलेक्ट किया है, विल शेयर दिस लिंक लेटर ऑल्सो। ओके, तो जस्ट अ क्विक राउंड ऑफ क्वेरी। तो आप में से कितनों का स्कोर लो स्कोर आया, लो स्ट्रेस? प्लीज रेज ए हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस? मॉडरेट स्ट्रेस। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस? हाई। ओके, डोंट फील शाई, इट्स ओके। इस साइड हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस किसका है? ओके ओके, ठीक है। देखिए, हम इसलिए टेस्ट करा रहे हैं तो ये क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज आए हैं to talk about managing stress. So it's important, the first step is that we understand whether we have stress or not, and if we have stress, what is the amount of stress. तो इसके पीछे कारण है, हम थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे। ओके, सो द बेसिक फैक्ट इज दैट हम सभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते ही हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है लाइफ का ही पार्ट है। सिचुएशंस होता है एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विल बी देयर इन लाइफ, राइट? बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रेस होना लाइफ में बुरी बात नहीं है, बट आप स्ट्रेस से कैसे डील कर रहे हैं दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस ना। तो मैं एक एग्जांपल, एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक टीचर आते हैं एंड एक पानी का ग्लास उठाते हैं। ओके, बाय द वे एक पानी का ग्लास मिल सकता है ना? पानी का ग्लास उठाते हैं एंड वो पूछते हैं कि इसका वेट कितना है ना, हाउ हैवी इज़ दिस ग्लास। तो कोई बोलते हैं कि इसका वेट 100 ग्राम है, 200 ग्राम है एंड सो ऑन, अलग अलग आंसर्स देते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसका वेट एक्चुअली 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी मैं पकड़ रहा हूँ, आई एम ईजिली एबल टू लिफ्ट इट, राइट? इट्स नॉट हैवी एट ऑल। बट इफ आई होल्ड इट फॉर 5 minutes then it's little difficult for me, right? If I hold it for 15 minutes it feels heavier. If I hold it for 30 minutes शायद मैं इसको पकड़ भी ना पाऊँ आधे घंटे के लिए, राइट? सो सेम वे जब हम स्ट्रेस का बात करते हैं तो हैविंग स्ट्रेस इज़ नॉट बैड, बट अगर आप स्ट्रेस को पकड़ के चल रहे हैं ना, देन इट विल समवेयर हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो जब स्ट्रेस होता है तो आई एम श्योर आप सभी कुछ ना कुछ डिफरेंट टेक्निक्स रहेगा जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ओके, बिफोर दैट ना, अगर हम मेंटल हेल्थ का बात करते हैं, दैन समवेयर आफ्टर द कोविड
especially in India, the mental health condition of the people, especially students, has deteriorated to a large extent. कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्रोनिक एलिमेंट्स ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड समवेयर कहीं ना कहीं अगर हम इसको अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज दैट इन द कमिंग टाइम्स इट्स गोइंग टू गेट इवन वर्स ना. तो देयर आर सम कॉमन वेज ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस जो आप सभी करते ही होंगे. ओके, सो सम ऑफ द कॉमन वेज इज, एक मेजर जो कंसर्न रहता है एज स्टूडेंट्स, स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम. तो अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं ठीक से ना, आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहते हैं, जितने भी आपके असाइनमेंट्स है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके, स्ट्रक्चर करके, एक डे प्लान बना के अगर आप चलते हैं तो टू अ लार्ज एक्सटेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कैन बी अवॉइडेड. तो पर्सनली अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, सो यूजिंग अ प्लानर ना, दिस इज समथिंग दैट इज़ रियली हेल्प मी ना. पहले मुझे पता नहीं होता था कि आज दिन भर में क्या क्या काम करना है, एंड काम ऐसे लगता था कि इससे कोई अंत ही नहीं है. सो द मोमेंट आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ प्लानर, सो आई नो कि एग्जैक्टली आज थर्सडे का दिन है, मेरे को क्या क्या चीज़ें करना है. अगर फ्राइडे, व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी प्लान्ड. तो जब आप प्लानिंग करके चलते हैं तो ट्रस्ट मी इट रियली रियली हेल्प्स इन योर स्टडीज़ एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. जो दूसरे तरीके हैं स्ट्रेस को डील करने का, दैट इज़ सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स. ओके, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन, म्यूजिक ना. सो ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू डील विथ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना. एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, विल ट्राई दिस. ओके ना, जस्ट सिट स्ट्रेट, आप आराम से बैठ जाएं. ओके, तो एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है. जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो ना, इफ़ यू डू इट यू विल फील गुड. ओके, तो ये क्या करना है आपको, हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को थोड़ा सा स्टिफ बनाएंगे, मसल्स को टाइट करेंगे एंड देन उसको रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे. ओके, सो बैठे बैठे यू विल स्टार्ट विद आवर फीट. जस्ट टाइटन द मसल्स ऑफ योर फीट, योर टोज टाइट कर लीजिए, स्टिफ कर लीजिए. स्टिफ 1 2 3 4 5 एंड छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए. नेक्स्ट टाइटन योर काफ्स, आपके काफ मसल्स को टाइट कीजिए, टाइट टाइट, जितना टाइट कर सकते टाइट कीजिए and then release it. Next, tighten your thighs, muscles of your thighs. Tight, जितना टाइट कर सकते हैं and then release. Okay. Tighten the muscles of your back. जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट कीजिए and release. Tighten your entire upper body. Release. Tighten your shoulders. Release. Tighten your arms. हाँ, biceps दिखा सकते हो आप. Tighten your arms. Clench your fists. Tight, 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 and release. Okay. Last part है. Tighten. Just close your eyes. Tighten the muscles of your face. अपने फेस को स्क्रंच कर लीजिए, जैसे नींबू चाटते हैं तो ऐसे. स्क्रंच योर फेस, टाइट टाइट टाइट, ऑल द मसल्स एंड रिलीज. ओके, आर यू फीलिंग बेटर ना. तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. तो अगर आप घर पे करेंगे ऐसे ना, तो करने के बाद आप बिल्कुल सो ही जाएंगे ना. तो इट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग फॉर द बॉडी. अब इसके अलावा आई एम श्योर कि आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप करते होंगे स्ट्रेस के लिए. कैन एनीवन शेयर आप क्या करते हैं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है? हाँ जी, जब स्ट्रेस होता है आपका क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं. ओके, आप बताइए. म्यूज़िक, फिजिकल एक्टिविटी. ओके, और कौन शेयर करेंगे? आपको ही बताना है ये ना. सर आप क्या करते हैं? सर अपनी डॉटर के साथ खेलता हूँ फिर मैं. यस. सो नाइस ना सर, डॉटर के साथ खेलते हैं. सर मैं ड्राइव करता हूँ. ड्राइव पे जाते हैं. सर मेडिटेशन. मेडिटेशन. ओके, अकेले रहती हूँ सर. अकेली रहती हैं.
देखिए कि स्ट्रेस मैनेज करने का अलग अलग तरीके हैं ना। मोस्ट कॉमनली जो हम देखते भी हैं ये है कि बिंज शॉपिंग करते हैं। आप में से कौन कौन बिंज शॉपिंग करते हैं? ओके ना, तो ये भी स्ट्रेस बस्टर है ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि शायद आप सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम में आप टाइम स्पेंड करते हैं ना। सो व्हेन यू स्क्रॉल थ्रू योर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम देन यू फील गुड। तो स्ट्रेस मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट जब आप बिंज शॉपिंग करते हैं या फिर सोशल मीडिया में सर्फ करते हैं तो क्या रहता है कि एट दैट मोमेंट यू विल फील गुड। दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना, कि एक बार आप स्क्रॉल करते हैं, अलग अलग रील्स देखते हैं, यू फील गुड। बट क्या होता है कि जब आप फ़ोन खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, क्या आप बस 2 मिनट के लिए खोल लेंगे? कभी कभी कितने घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता ना। ऐसा होता है आपके साथ? इट हैपन्स ना, हाँ, स्पेशली एग्ज़ाम से पहले ना, हाँ, ऐसे बहुत होता है। नाउ अगर हम देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का तो अलग अलग तरीका है। तो अगेन इट्स अप टू यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, बट देर आर सम थिंग्स दैट आपको ही आइडेंटिफाई करना है लिस्ट से ना। अगर कहीं ना कहीं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और अगर आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं या फिर किसी और को हार्म कर रहे हैं तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको इमीडिएटली डील करना है। ओके, बाकी जितनी चीज़ें आप पानी पीते हैं, आप म्यूज़िक सुनते हैं, ये सब अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आप जब आप स्ट्रेस डील कर रहे हैं इसके वजह से अगर आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं या किसी और का हार्म कर रहे हैं तो प्लीज़ यू नीड टू टेक मेडिकल हेल्प ना। तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हैं। Now all of these are common things that maybe you are already doing or it's very easy for you to do, but main problem ये है कि चाहे आप कितने भी टेक्निक्स यूज़ करें, the main problem is that stress comes back ना। एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी तक हमने जितने भी चीज़ें के बारे में बात किया है, so this is something that you are already experiencing, this is something that you are already trying, but the fact of the matter is that stress comes back। तो अगर हम यहाँ पर बैठे हैं बात कर रहे हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इज इट ओके? इज एवरीवन विथ मी टिल नाउ? प्लीज गिव अ थम्स अप। ऊपर में जो बैठे हैं आप मेरे साथ हो? ओके, थैंक यू सो मच। नाउ अब ये इसके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का जो जड़ है, जड़ कहाँ से है? व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द कोर रीज़न फॉर स्ट्रेस? हमने बोला कि अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, बट व्हाट इज़ द कोर रीज़न ना। अगर हम डे टू डे लाइफ का बात करते हैं ना, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसे होता है कि किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, बुला भरा बोल दिया। आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर आपका टीचर हो सकता है या फिर बच्चे हो सकते हैं, कुछ बोल दिया तो वो चीज़ क्या उसी मोमेंट के लिए है या अंदर में रह जाता है? रहता है ना अंदर। लगता है अरे इसने मुझे कैसे ये बोल सकता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, या फिर ये मेरे लिए ही ये बहुत पार्शियल है, मुझे ही ऐसे ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर में तो चलता रहता है, इट डज नो एंड टू इट। या फिर मान लीजिए कि आप एक दिशा में जाना चाहते हैं ना, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, बट चीज़ें क्या है कि सिचुएशन ऐसे कि आपके मुताबिक चलता ही नहीं है। जब भी आप कुछ अच्छा करने का कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ उल्टा निकल जाता है, बुरा निकल जाता है ना। तो इसके वजह से फिर अंदर में काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ चलता रहता है। या तीसरा कि जब एक सिचुएशन आता है जिसमें आपको बहुत कॉर्नर किया जाता है ना, तो जो एग्रेशन है, इरिटेशन है, मैं इसको कैसे डील करता हूँ। तो ये सब कारण हम रोज़मर्रा में हम एक्सपीरियंस करते हैं ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप डे स्कॉलर हैं ना, एक जनरल एक डे हम देखते हैं ना, अगर आप डे स्कॉलर है एंड आप कॉलेज आ रहे हैं, आप आते थे ऑटो में आ गए, निकलते निकलते ऑटो वाले ने कुछ तो टॉन्ट मार दिया या कुछ तो कमेंट पास कर दिया, तो उसके वजह से क्या है कि वो अंदर में वो चलता रहेगा, अरे इसने कैसे बोल सकता है, मैं तो ये हूँ। फिर आप कॉलेज आएंगे, कॉलेज दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पर वो चिड़चिड़पन निकल जाता है। क्लास में बैठेंगे, क्लास में वो चिड़चिड़पन निकल जाता है। तो एक जो सिचुएशन था, एक कॉन्स्टेंटली आपके अंदर में एक मंथन क्रिएट करता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, राइट। तो अगर आप देखते हैं कि अगर स्ट्रेस का अगर कोई रूट ओरिजिन है या कॉज है, तो वो क्या है ये समझते हैं ना। एक छोटा सा एक्टिविटी है,
आई वुड वांट कि आप सब भी पार्टिसिपेट करें। तो हम एक स्टोरी शेयर करेंगे, ठीक है? तो स्टोरी ऐसा है कि मैं स्टोरी का एक लाइन बताऊंगा एंड आपको कंटिन्यू करना है। इज इट ओके? तो ऐसा है कि आज मैं मीरठ से वापस जा रहा था। आज मैं मेरठ से वापस जा रही थी तो मुझे रास्ते में गुड़िया दिखी। आज मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे रास्ते में गुड़िया मिली, मैंने वो उठा ली। फिर मैंने उसको अपने पास रख लिया। फिर मैं बोर हो गया, मैंने अपने दोस्त को दे दी। दोस्त ने उसको फेंक दिया। कूड़े वालों से ले गया। गुड़िया पर मुझे बाद में याद आई कि वो गुड़िया अच्छी थी। मुझे फेंकना नहीं चाहिए था वो गुड़िया। फेंकना नहीं चाहिए था। कूड़े वाले को हमने वापस बुलाया, बट वो बहुत आगे जा चुका था, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले को कॉल कर दिया। आया नहीं आया म्यूनिसिपल, तो पकड़ो उसको। फिर मैं उस गुड़िया को भूल गया। मैंने वो गुड़िया पैक करके किसी को दे दी। जिसको गुड़िया मिली वो स्ट्रेस में आ गया। मैंने उस गुड़िया को एक बच्चे को दे दी। मैंने वो बच्चा छीन लिया। बच्चे को छीन लिया? अरे बाप रे। ना अभी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं म्यूजिकल चेयर के लिए। ना देखो, अभी जो हमने गेम खेला ना, एक्चुअली इसका पीछे जो पर्पस यही है कि जो अपने दिमाग में भी ऐसे थॉट्स चलता है ना, पहले एक थॉट आता है, उसके पीछे दूसरा थॉट आता है, उसके पीछे तीसरा थॉट आता है, चौथा थॉट आता है। इसको बोलते हैं ट्रेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं ना। तो एक्चुअली दिमाग ऐसे ही चलता है। अगर आज के दिन में मुझे टीचर ने डांटा क्लास में, तो अभी शायद थॉट ऐसे नहीं जाएगा कि क्यों डांटा, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। थॉट यही रहेगा कि अरे ये टीचर हमेशा पार्शियलिटी करती है, मुझे देखती है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे सब कुछ बुराई करते हैं, मैं कितना अच्छी हूँ बट मेरे से सब गलत ही करते हैं ना। तो ऐसे जो थॉट्स है, थॉट्स का कोई अंत नहीं है। अगर किसी को प्रमोशन मिल गया तब भी कहीं ना कहीं तो थॉट प्रोसेस ऐसे चलता है कि हाँ पता नहीं ये तो कुछ पॉलिटिक्स किए, कुछ तो बोला होगा ना, बॉस के साथ इसका अच्छा सेटिंग है, ये है वो है। तो अगर हम देखते हैं जो माइंड है, माइंड का कोई अंत नहीं। तो एक्चुअली जो रूट कॉज है स्ट्रेस का, ये है कि जब थॉट आता है, एक थॉट आया, स्पेशली जब नेगेटिव थॉट रहता है, एक नेगेटिव थॉट आता है, उसको पकड़ दूसरे नेगेटिव थॉट आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, एंड इसका कोई अंत नहीं है। एंड ये एक रूट कॉज है स्ट्रेस का। कैसे रहता है कि अगर हम किसी को भी हम तारीफ करते हैं ना, अरे आप कितना अच्छे दिख रहे हो, तो रिस्पॉन्स कैसा रहता है? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? इफ आई टेल यू यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आप इजीली एक्सेप्ट करते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे रहता है ना रिस्पॉन्स ना। नॉर्मली जब हम किसी को तारीफ करते हैं ना, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, फर्स्ट रिस्पॉन्स डिनाइल में आता है। अरे आप कितना स्मार्ट दिख रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तू भी स्मार्ट है। ऐसे होता है ना। बट अगर कोई बोलता है कि अरे यार तेरे में ना ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो जब हम कुछ एक नेगेटिव चीज़ बोलते हैं ना, हम बहुत ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हो? जब हम कुछ नेगेटिव किसी के बारे में कोई हमें बोल देता है, तो जो नेगेटिव चीज़ है हम बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं, हाँ शायद ऐसा ही है। बट अगर कोई पॉजिटिव चीज़ बोले तो कहीं ना कहीं हम एक डिनाइल में रहता है, नहीं नहीं शायद ऐसा नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो कंडीशनिंग है, ब्रेन का ट्यूनिंग ही ऐसे हुआ है कि नेगेटिव चीज़ों को हम बहुत आकर्षित होते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो पॉजिटिव चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं हम एक रेजिस्ट करते हैं। तो अगर स्ट्रेस से परमानेंट सोल्यूशन मांगना है, तो ये जो विशियस साइकिल है एक नेगेटिव थॉट पैटर्न का, इससे बाहर निकलना है। सो मैत्रेय दादाश्री जी कहते हैं कि इट इज़ द माइंड विच क्रिएट्स स्ट्रेस, पेन एंड सफरिंग, कीप द माइंड हेल्दी एंड पॉजिटिव। ओके, सो बाय द वे ही इज़ मैत्रेय दादाश्री जी, सो ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मैत्रीबोध परिवार एंड आवर फ्रेंड हु हैज गाइडेड अस इन दिस पाथ। ओके, तो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट करना है स्ट्रेस का, इट इज़ समवेयर इन द माइंड एंड समवेयर डीपर देन द माइंड। तो जो कॉमन सोल्यूशंस जो आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ मोस्टली कंस्ट्रिक्टेड
ओनली टू द फिजिकल बॉडी। तो कहीं ना कहीं ये जो माइंड है, माइंड को हमने अभी तक शायद ठीक से डील नहीं किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज वेयर द एक्चुअल सेशन बिगिंस। ओके, सो दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट द एक्चुअल कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर व्हेन वी लुक एट इट, सो देयर वर अ कपल ऑफ रिसर्च दैट इज डन। सो देयर वाज वन रिसर्च डन इन द यूएस, जिसमें 30,000 वॉलेंटियर्स को लिया गया एंड 8 साल के लिए इनको ट्रैक किया गया। तो जितने भी वॉलेंटियर्स थे, इस 30,000 लोग, इनसे 2 ही क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला प्रश्न ये था कि आपकी लाइफ में कितने स्ट्रेस है, हाउ मच स्ट्रेस डू यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। तो इसमें 2 चीज़ें, 3 रिस्पॉन्स था, लो स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस और हाई स्ट्रेस। एंड इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो किसी ने बोला हाँ, किसी ने बोला ना। 2 क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मच स्ट्रेस डू यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, लो, मॉडरेट और हाई। एंड सेकेंड इज डू यू थिंक स्ट्रेस इज गुड फॉर योर हेल्थ। ना, तो आप में से कई जनों ने भी बोला कि हाँ, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है। तो इसमें जो 8 साल के बाद जब ट्रैक किया, तो इसमें ये देखा गया कि द पीपल हु हैड हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, they had 43% more chance of having different types of cardiovascular diseases। अलग अलग तरीके के हार्ट डिजीज़ से जो एक हेल्थ डिटोरिएट होने का या फिर मरने का जो प्रॉबिलिटी था, दैट वाज 43%। दैट मीन्स दिस इज़ वेरी वेरी हाई। तो कहीं ना कहीं ये आप मान सकते हैं एक तौर पे कि अगर हाई स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल बॉडी है इसके लिए अच्छा नहीं है। ओके, but now the second result that they found out, which was very very surprising, is that this result was true. If anyone is interested, I'll send this research paper. Okay, so this result was true in one condition. That condition was that if they felt that stress is bad for them। मतलब आपको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है और आपको लगता है कि स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपका 43% ज़्यादा रिस्क है मरने का। ऑन द अदर हैंड, द पीपल हु हैड हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस थॉट दैट स्ट्रेस इज गुड फॉर देम, देयर हेल्थ कंडीशन वॉज बेटर दैन पीपल विद लो लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब कहने का तात्पर्य ये है, द मेन क्रक्स ऑफ दिस रिसर्च इज दैट stress is harmful depending on your perception towards stress. If you are perceiving stress to be bad, then it's actually causing a lot of harm to your body. But if you think that stress is good, then somewhere it has a positive impact on your body. ना? तो there is something called a stress test. तो stress test में कैसा रहता है? I need one volunteer. Can anyone volunteer? Sakshi, ma'am, which department are you from? MBBS. Okay, ma'am. Okay, so now Sakshi ji is going to, you're comfortable with basic maths, right? Now Sakshi ji is going to give us a simple mathematical calculation, okay? So we'll start with 1000, okay? So now Sakshi ji, you need to give us count from 1000 to backwards, okay? 1099, 999, 998 and so on. एक कैच है, इसमें आपको सीक्वेंशली नंबर काउंट नहीं करना है, बट 17 के गैप्स में काउंट करना है। ओके, सो दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज 1000, सेकेंड नंबर विल बी 983, फिर सबट्रैक्ट करना है। ओके, सो 1000, 983, 966। Okay, Sakshi, just tell us how were you feeling? I was feeling very nervous. Normally कैसे रहता है कि ऐसे जब सिचुएशन होता है ना, तो a couple of things how your body responds ना। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो बॉडी का रहता है वो क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट रेट वो बढ़ जाता है, इट स्टार्ट्स पैल्पिटेटिंग फास्ट 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 ना। शायद जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ओके, तीसरा अगर लंबा टाइम अगर थोड़ा सा और करते तो शायद पसीना पसीना भी आ जाता है ना। सो दिस इज हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, फूल जाते हैं, एंड इसके वजह से दिस इज द रीज़न वाई दे कैन बी डिफरेंट हार्ट रिलेटेड
डिजीजेस बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो अगर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब जो वेल्स है मोटा हो जाता है, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, एंड अगर सस्टेन लंबा टाइम के लिए ऐसे सिचुएशन कंटिन्यू हो जाए देन इट अफेक्ट्स योर हार्ट। बट अगर हम इसको 1 मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं, अगर हम सिर्फ इसको एक बायोलॉजिकली देखें, तो यही जो रिस्पॉन्स है तब आता है जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। किसी ने आपको बहुत अच्छा न्यूज़ दिया, मान लीजिए कि यू आर गिविंग द एग्जाम एंड यू स्कोर्ड द टॉप, यू आर द टॉप रैंकर, then also your body responds in the same way, your heart starts beating fast and you feel very very excited। तो क्या है कि अगर हम देखते हैं बायोलॉजिकली, जो एक स्ट्रेस का जो बॉडी का रिस्पॉन्स है एंड जो एक एक्साइटमेंट का बॉडी का रिस्पॉन्स है, दीज आर मोर और लेस द सेम। ओके, मतलब बॉडी को पता नहीं कि आप स्ट्रेस्ड हो या एक्साइटेड हो, एक ही जो डिफरेंस है दैट इज इन द ब्लड वेसल्स। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, when you are excited or happy blood vessels are relaxed। now तो अगर बॉडी को पता नहीं है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो या आप हैप्पी हो एंड एक ही चीज़ रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मतलब जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो द वे द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इज एक्चुअली इट्स बॉडी इज प्रिपेयरिंग यू। जब ब्लड हार्ट बीट बढ़ता है दैट मीन्स मोर ब्लड इज फ्लोइंग टू योर ब्रेन, दैट मीन्स जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन है, फियरफुल सिचुएशन है, उसके लिए आपको अपना बॉडी प्रिपेयर कर रहा है टू फेस दैट सिचुएशन। जब ज़्यादा ब्लड आपके ब्रेन में फ्लो हो रहा है, मतलब योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो समय जब स्ट्रेस भी रहता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी होता है, इट इज़ नथिंग बैड दैट योर बॉडी इज डूइंग, द बॉडी इज जस्ट प्रिपेयरिंग यू टू फेस दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। बट कहीं ना कहीं जो अपना परसेप्शन है, perception makes the difference between whether the blood vessels are relaxed or constricted। अब कहने का तात्पर्य in all that we've just shared is that the moment you are able to change your perception about stress, immediately जो इसका impact है, positive impact आपके body में आप experience कर पाते हैं। But now the question is how do we do that? How do we change our perception of stress? तो ऐसे तो नहीं रहेगा कि मैं आपको एक मंत्र दूंगा, माला दूंगा ना, स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस इज गुड, 108 बार रोज चैन कीजिए, सडनली यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट स्ट्रेस इज गुड। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। सो व्हाट इज इट दैट वी कैन डू इन ऑर्डर टू चेंज आवर परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस और आवर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्ट्रेस? तो इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इफ यू लुक एट आवर माइंड, सो वी टू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर इसको चेंज करना है, वो चेंज आपको अंदर से अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि सिचुएशन चेंज हो जाए, सिचुएशन बेटर हो जाए, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास से जो लोग हैं वो चेंज हो जाए, वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप बाहर किसी और व्यक्ति को या किसी और लोग को या सिचुएशन में चेंज करने जाएंगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस में फंस जाएंगे ना, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। तो एक चीज़ जो आप चेंज कर सकते हैं वो है स्वयं अपने आप को। तो अगर हम देखते हैं, वी टॉक दैट, वी सेड दैट द मेन प्रॉब्लम जहाँ से स्ट्रेस आता है दैट इज़ योर माइंड, राइट। नाउ देर आर टू थिंग्स दैट कॉन्टीन्यूसली अफेक्ट्स योर माइंड, इन्फ्लुएंसेस योर माइंड। ओके, जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। जो बाहर की जो परिस्थिति है उसकी वजह से जो आपका मन का जो एक स्टेट है वो भी चेंज होता रहता है। बाहर अच्छा परिस्थिति है तो उसका भी अच्छा प्रभाव आपके अंदर पड़ता है। On the other hand, the second thing that helps influences the state of your mind is your internal state, या आपके आंतरिक स्थिति। समझ रहे हो? तो एक है बाहर की परिस्थिति जो आपके मन को प्रभाव देता है, और दूसरा आपके आंतरिक स्थिति, your internal state, और दोनों के बीच में खींचातानी होता रहता है। If internally, if you are a strong person, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए, आप बहुत आराम से इजीली आप डील कर पाते हैं ना। बट अगर आपके इंटरनल स्टेट बहुत वीक है ना, अंदर से बहुत कमज़ोर है, तो मतलब जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता जाएगा उसकी वजह से आप भी इम्पैक्ट होते जाएंगे ना। सो विच इज़ बेटर, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और इंटरनल स्टेट? इंटरनल स्टेट, राइट। दिस इज द ओनली डिफरेंस ना। ईदर we are so weak internally that outside circumstances influence us, or we become internally strong, चाहे कुछ भी हो बाहर आप डट के रहेंगे ना। and you've seen people like that maybe in your own lives also. there are some people in your lives, I'm sure you've observed, कितने भी difficult times हो, कितना भी challenges हो,
बहुत क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ वो आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ उनको हिलाएगा नहीं। हैव यू सीन सम पीपल इन योर लाइफ लाइक दैट? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? अप नाउ द क्वेश्चन इज, would you also like to be something like that? That internally you are so strong that outside influences does not affect you. Would you like to be that? Okay. तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शिफ्ट है, ये 4 स्तर पे होता है। द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन योर फिजिकल लेयर, योर फिजिकल बॉडी। आज के दिन में आपका जैसे भी हेल्थ है, आप हेल्दी है, हेल्दी नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, इट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। इफ़ यू हैव गुड फूड, इफ़ यू आर एबल टू डू प्रॉपर वर्कआउट, रेस्ट वेल, ऑटोमेटिकली जो आपका फिजिकल बॉडी है, यू विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ शिफ्ट, अ ट्रांसफॉर्मेशन। बट क्या आपका फिजिकल बॉडी ही है जो आप हो? देयर इज समथिंग मोर इनसाइड, राइट, बिसाइड्स द फिजिकल बॉडी। द सेकेंड लेयर है, दैट इज योर माइंड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द माइंड, दैट इज योर थॉट्स, टू सम एक्सटेंट आपके कंट्रोल में है कि जैसे पेरेंट्स बोलते थे, जैसे संगति वैसे आप भी बन जाते हैं। इफ़ यू स्पेंड योर टाइम विद गुड पॉजिटिव पीपल, देन स्लोली जो आपका माइंड है, थॉट्स है, थॉट्स भी पॉजिटिव बन जाता है। दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, बट इफ़ यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज गॉसिपिंग, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप भी वैसे बन जाएंगे। सो दैट इज़ इन योर कंट्रोल। तो टू सम एक्सटेंट जो आप माइंड का बात करते हैं, सम पार्ट इट्स इन योर कंट्रोल, सम पार्ट इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। उससे और डीप जाएंगे, देन कम्स अ इमोशनल लेयर। जो आपकी इमोशनल लेयर है, इसको कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं ना? तो एक चीज़ यहाँ पर आप सभी को समझना है, मानना है कि जो आपकी इमोशंस है आपके कंट्रोल में नहीं है। इफ़ यू आर फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, आप बस सोच के वो फीलिंग से बाहर नहीं आ सकते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग हैप्पी। इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री, यू आर फीलिंग एंग्री। इफ़ यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग सैड ना। बट अभी इसमें ऐसा है कि इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, बट इमोशंस कंट्रोल करता है आपके थॉट्स को। अगर अंदर में पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो जो आपके अंदर में थॉट्स आएगा, थॉट्स भी पॉजिटिव थॉट्स आएगा। बट इमोशनली अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो जो थॉट्स आएगा, थॉट्स भी नेगेटिव रहेगा। एंड जैसे आपका थॉट्स है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके फिजिकल बॉडी में। तो मतलब ये इनसाइड आउट अप्रोच है। इमोशन जैसा रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस होता है माइंड पे, माइंड जैसा रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस होता है आपके बॉडी में ना। जैसे आप भीतर की तरफ जाएंगे, बॉडी में आपका कंप्लीट कंट्रोल है, बट जैसे भीतर जाएंगे आपका कंट्रोल और कम और कम और कम होता जाता है। अभी इमोशनल लेयर के भीतर भी और एक लेयर है ना, सो दैट लेयर यू कैन कॉल द स्पिरिचुअल लेयर और योर ट्रू सेल्फ। अब ये जो लेयर है, इसके बारे में ना तो हम जानते हैं या फिर ना ही हमने एक्सपीरियंस किया है, बट इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। ये जो आपका स्पिरिचुअल लेयर है, ये आपका इंटरनल स्टेट है। अगर आपका ये इंटरनल स्टेट अच्छा है, तो आपके इमोशंस भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इमोशंस ही आएगा, थॉट्स भी पॉजिटिव रहेगा, फिजिकली भी आप अच्छा हेल्थ रहेगा आपका। बट कहीं ना कहीं जो आपका ये स्पिरिचुअल सेल्फ है, इनर स्टेट, कहीं पर हिला हुआ है ना। हिला हुआ मतलब कैसे? मतलब आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एक्सपीरियंस समथिंग गुड एंड पॉजिटिव इन लाइफ ना, मान लीजिए कि बचपन में आपके पेरेंट्स ऐसे थे कि आपको बहुत अप्रिशिएट करते थे, आपको बहुत अच्छा बोलते थे ना, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है आपके अंदर में रह जाता है ना, तो आप एक अच्छा व्यक्ति बनते हैं। बट अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो हुए जहाँ पर सब आपको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं ना, पेरेंट्स कीप ऑन क्वेश्चनिंग, अरे तू ये भी ठीक से नहीं करता, वैसे भी ठीक से नहीं करता, तो क्या होता है कि उसका भी इम्पैक्ट आपके अंदर रहता है। एंड जैसे आप ग्रो करते हैं, देन यू फील कि अरे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ चीज़ करने में, या लो सेल्फ एस्टीम। तो लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी तक ना, पॉजिटिव या फिर डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस, वो कहीं नहीं गया है, आपके अंदर ही बैठा है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि एक आई यूज़ टू लाइक पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, बट एक बहुत एक बहुत बड़ा लेवल का एक डिबेट था, जहाँ पर मैं जब स्टेज में गया, एंड आफ्टर गोइंग ऑन द स्टेज, अपने को प्रिपरेशन करने के लिए कुछ 5-10 मिनट दिया था,
व्हेन आई प्रिपेयर्ड, बट देयर वाज सम इशू एंड जो मैंने लिखा था मैं नहीं रीड कर पाया. एंड उस बार जब मैं डिबेट में गया, वो बहुत बड़ा लेवल का डिबेट था, व्हेन आई स्पोक आई कुड नॉट स्पीक प्रॉपर्ली. एंड जैसे मैंने एक वर्ड मैंने ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया तो एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. एंड आफ्टर दैट सिचुएशन, दैट 10 minutes वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ. अभी उसके वजह से इतना अंदर में डर बैठा कि उसके बाद किसी व्यक्ति से बात करने में मुझे झिझक होता था. आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी अफ्रेड टू लाइक इवन टॉक टू एनीवन. ना वो एक इंसिडेंट था, मे बी 5 मिनट 10 मिनट का इंसिडेंट था, बट उसका जो इम्पैक्ट था इट वॉज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ माई लाइफ. ऐसे आई एम श्योर कि आप लोग भी कुछ ना कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ रहेगा या कुछ डर भी है अंदर. आप कुछ करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं कुछ रोकता है आपको, ये थॉट ऑफ फेलियर ना कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू वेल. आप अच्छा करना चाहते हैं बट कहीं पर ये लगता है कि आप तो अच्छा करते बट सब लोग आपसे बुरे ही करते हैं, आपको हार्म ही करते हैं. यू वांट टू बी अ गुड हैप्पी पर्सन बट देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू एंड नॉट हेल्प यू, अलाउइंग यू टू एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस. अब ये सब आपके किसी का भी गलती नहीं है, या आपका भी गलती नहीं है, किसी और का भी गलती नहीं है. दिस इज़ हाउ द सिचुएशन वॉज. एंड सिचुएशन की वजह से आपके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें भर गए हैं. नाउ द थिंग इज दैट अंटिल एंड अनलेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम योर बीइंग, ना लाइफ में जिस हिसाब से आप चाहते हैं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ना अपने बलबूते में आप कोशिश कर सकते हैं बट कुछ चीज़ें बहुत डीपली आपको इम्पैक्ट करता है जिसके बाद आप बाहर निकलने के लिए मुश्किल होता है ना. तो अगर हम रूट कॉज देखते हैं स्ट्रेस का, इट इज़ ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड इन लाइफ विच इज़ देयर इनसाइड ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ एन मेमोरी, इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी. ना जब हम मेमोरी का बात करते हैं हमें लगता है कि इट्स ओनली इन द ब्रेन ना दैट स्टोर्स द मेमोरी, बट ऐसा है कि जो आपके फिजिकल बॉडी है, आपकी जो सेल्स है, हर एक सेल का भी मेमोरी होता है ना आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर. तो यहाँ पर जो हम एक सोल्यूशन हम शेयर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ लाइक अ परमानेंट सोल्यूशन और अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन टू स्ट्रेस. तो इसमें ऐसा है कि हम अपने बलबूते से शायद हम चीज़ें को चेंज नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड एन इंटरवेंशन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर राइट नाउ is an intervention, an energy transfer process that is going to go right to the deepest core of your being, and it is going to help cleanse all of these memories. तो ऐसे जितने भी unwanted experiences हैं, ऐसे जितने भी unwanted memories हैं, traumatic experiences हैं, इस energy transfer के द्वारा इसका cleansing होगा, शुद्धिकरण होगा, ताकि आप जीवन को एक फिर नए सिरे से आप जीवन को अनुभव कर सकें. Okay, are you with me till now? Okay, this energy transfer process is called Shakti Prabha. Okay, so Shakti Prabha में एक मेडिकल रिसर्च भी किया गया है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में. तो इसमें ये देखा गया है कि आफ्टर रिसीविंग Shakti Prabha, so we had 2 groups of people, random people. तो एक कंट्रोल ग्रुप था जिसको बेसिक एक्सरसाइजेस कराया गया, एंड एक ग्रुप था जिसको रेगुलरली शक्ति प्रवाह हमने दिलाया. सो व्हाट वाज फाउंड इज दैट द पीपल हु एक्सपीरियंस शक्ति प्रवाह, देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस in their level of emotions. That means they were able to experience more positivity, more peaceful emotions. There was a huge amount of impact on their cognitive abilities in their brain. Okay, and there was a huge amount of shift that they were able to experience in their life. तो जो हम शक्ति प्रवाह का बात कर रहे हैं ये कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर रिसर्च भी किया गया है, एंड वीव सीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. एंड समवेयर एज एन इंडिविजुअल माई जर्नी ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस शक्ति प्रवाह, एंड इफ आई लुक एट माई लाइफ देन एंड नाउ, देन आई कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस. So this is what we wanted to offer to all of you today. So would you like to receive this energy and experience a shift in your life? इसमें ऐसा है कि जब आप yes बोलेंगे तभी आपके लिए प्रोसेस होगा. Okay? See, and in doing anything, no, there is a consent that is required. So for this energy transfer also to work on you, no, so it is a consent that you give to the universe. So if you say yes, this process will happen for you. If you do not say anything, then this process will be nothing for you. Okay? So again, this is an opportunity
कि जो भी चीज़ से आप ग्रस्त है ना, कुछ एडिक्शन हो सकता है, थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, इफ़ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम इट, दिस इज दैट मोमेंट दैट यू कैन एक्सपीरियंस दैट शिफ्ट. ओके, सो आई विल आस्क वन मोर टाइम, सो वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस दिस प्रोसेस ऑफ शक्ति प्रभा? ओके, ठीक है, आपको फिजिकली बोलना है, ठीक है, जिन्होंने नहीं बोला है. वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस शक्ति प्रभा? ओके, थैंक यू. नाउ दिस शक्ति प्रभा इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस. सो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सिट, रिलैक्स एंड जस्ट बी ओपन टू रिसीविंग. ओके, सो इफ यू बिलीव इन एनी फॉर्म ऑफ गॉड और डिवाइन, सो यू कैन just put a prayer from your heart कि I am going to receive this energy transfer process, may I be able to receive it completely. Okay? तो आप किसी भी भगवान या फिर गुरु को मानते हैं तो उनको ये प्रार्थना रख सकते हैं कि मैं ये ऊर्जा रिसीव करने वाला हूँ, इसको मैं अच्छे से रिसीव कर सकूँ. Okay? If you do not believe in God, if you do not believe in Guru, that's absolutely fine. You can just make a prayer to the universe itself. Now, this energy, it's a positive energy that we are going to transfer it to you. Just pray to the universe itself, or just announce it to the universe that I am going to receive this energy. May I receive it completely, ताकि मेरे अंदर में जितने भी ऐसे अड़चने हैं, blockages हैं, मैं उससे मुक्त हो जाऊँ. May I be free from everything that is holding me down, that is not allowing me to move forward in life. Okay? Okay, are we ready? Sorry जी, ready? Okay. So इस प्रोसेस में इट्स लाइक अ हाफ एन आवर मेडिटेशन प्रोसेस. तो बस आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, बस आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. बीच में कुछ क्षण के लिए देयर विल बी एन इंस्ट्रक्शन टू ओपन योर आइज. ओके, आंखें खोलने हैं. तो इस दौरान सो देयर विल बी एन इमेज ऑफ मैत्रेय दादाजी. सो दिस एनर्जी ट्रांसफर, सो एवरी एनर्जी नीड्स टू हैव अ सोर्स. द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज मैत्रेय दादाजी जी. तो उनका इमेज शो होगा, बस आपको आंखें खोल के इमेज को देखना है. एंड जब बोलेंगे आंखें बंद करें, देन यू जस्ट क्लोज योर आइज. दैट्स द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड. ओके, द रेस्ट ऑफ द थिंग, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, दिस एनर्जी इज गोइंग टू वर्क इन दैट मैनर. ओके, सो आई थिंक वी रेडी टू बिगिन. जस्ट एक रिक्वेस्ट है बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज कीप योर फोन्स ऑन फ्लाइट मोड. ओके, फ्लाइट मोड और टर्न इट ऑफ. एंड बस ये जो 25 मिनट है, 25 मिनट, दिस 25 मिनट्स इज ओनली एंड ओनली फॉर यू. तो जितना आप अपने तक ही रहेंगे ना, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बी सेल्फिश, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो जस्ट कीप योर फोन्स ऑन either flight mode or turn it off. Please don't even keep it in vibration mode because it will distract you. Okay, so I think we can start now. So just close your eyes. जितना हो सके आपका जो बैक है, रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा रखना है. ओके, as far as possible. Some of you may be able to experience different visions, or some of you may just be able to experience peace. Okay, so these are different experiences people have. Okay, so DG, we can start. Body, emotions, and our entire being be completely ready and prepared. कृपया अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठें. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पीठ सीधी करके बैठें ताकि शक्ति प्रवाह की ऊर्जा आपके ऊर्जा केंद्रों से अच्छी तरह प्रवाहित हो सके. आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं. यू मे स्लोली क्लोज योर आईज. क्योंकि यह दैविक प्रक्रिया शक्ति प्रवाह मैत्रेय दादा श्री जी के कृपा और मार्गदर्शन में हो रहा है. हम अभी मैत्रेय दादा श्री जी को आह्वान करते हुए उनके मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे. ज्योतिरूपाय परम सखाय
जी नमो नमः। ओम ज्योतिरूपाय परम सखाय परमानंदाय दादा श्री जी नमो नमः। ओम ज्योतिरूपाय परम सखाय परमानंदाय दादा श्री जी नमो नमः। दादा श्री जी नमो नमः। दादा श्री जी नमो नमः। ओम शांत अवस्था में रहते हुए अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। अपने श्वासों को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए keep your complete focus on your breathing. विचार आएंगे, विचार जाएंगे। आप अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखिए। शांत हो जाइए। रिलैक्स योरसेल्फ। इस अवस्था में रहते हुए अपनी पीठ को सीधा रखें और आराम से बैठे रहें। अपने विचारों को आने और जाने दें। यदि आप जानते हैं तो आंतरिक रूप से
दादाश्री जी मंत्र या आपके इष्ट के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने आप को सहज रूप से बहने दें। इसी तरह इसी गहरी अवस्था में रहते हुए अपने आप को तैयार कर ले शक्ति प्रवाह को प्राप्त करने के लिए। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपने सामने स्क्रीन पर मैत्रेय दादाश्री जी की आंखों में देखकर शक्ति प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपने चेतना में दैविक प्रेम और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने हृदय में दैविकता का स्वागत करता हूं। मेरा शरीर, मन और चैतन्य दैविक अनुग्रह से भर रहा है। मेरे हृदय में दैविकता जागृत हो रही है। मेरे चारों ओर प्रेम और शांति है। मेरे चारों ओर प्रेम और शांति है। मेरे चारों ओर प्रेम और शांति है। अपने हृदय केंद्र अनाहत चक्र पर रख सकते हैं। Slowly come back to this moment. धीरे से इस क्षण में वापस आए। You can gently, whenever you feel comfortable, you can rub your hands and place them on your eyes. So, thank you so much for receiving this energy called Shakti Prabha. तो इसमें ऐसा है कि that if you look at us as human beings, हम isolation में नहीं रह सकते हैं ना. So when we say mankind या humanity, that means all the human beings together, and हम एक दूसरे से connected हैं. शायद आप एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग friends हैं, relatives हैं, नहीं भी जानते हैं, but फिर भी हम सब एक consciousness share करते हैं. तो हमारा एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत चैतन्य रहता है. तो ऐसे ही एक वर्ल्ड का भी एक कॉन्शियसनेस है. जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का भी अपने एक कॉन्शियसनेस है. मीरठ सिटी का भी एक कॉन्शियसनेस है. हम एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करते हैं, एक पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपीरियंस करते हैं, ये जो इसका इम्पैक्ट है ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता है. So when you're experiencing peace and positivity, it is going to help shift the consciousness also. So that's why in individual consciousness, it leads to
द कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इटसेल्फ। जब भी हम मैत्रीभूत परिवार के कोई भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो इसके पीछे जो भाव है, भाव यही है कि हम कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम कर सके अपने लाइफ में भी और लोगों की लाइफ में भी। तो इस मैत्रीभूत परिवार की काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए हमारा तो स्पेशली जो यूथ के लिए we've got a very very active youth team called Youth for Global Peace and Transformation। तो हम YGPT के थ्रू काफ़ी सारे ऑनलाइन सेशंस भी हम करते हैं डीलिंग विद वेरी वेरी specific challenges like peer pressure, how to deal with peer pressure, how to deal with aggression, how to find the right path for you in terms of your careers। तो ऐसे अलग अलग सेशंस होता है। तो आई एम श्योर कि आप सभी ने अपना अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। सो वी विल सेंड यू इनवाइट। सो वेन एवर वी हैव एनी ऑनलाइन सेशन ना, प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन। सो दीज आर 1 घंटे का ऑनलाइन सेशन रहता है इन अ मंथ, बट इफ़ यू अटेंड इट ना, यू विल गेट टू नो lot of positive things and it will help you in your personal development also। That's one। and दूसरा चीज़ जो आज आपने experience किया, this energy shift, maybe you felt it, maybe you did not feel it, but just rest assured कि इसका जो impact है आने वाले समय में आप definitely will be able to see in your life। So this was like a servicing that was done in your entire being। अभी इसको आगे ले जाने के लिए so there are 2 ways। so either like we've got some online meditation also, you can participate in that, or else अपने पास जहाँ जिसमें हमने शक्ति प्रभा लिया, that photo of Mitra दादाश्री जी, that is called the divine light। No, so that is not just a photo, it is a blessed image and it has his consciousness। ना तो जाते समय so सोडी जी will have some divine lights in case if you feel for it, so you can keep a divine light for yourself। so this divine light you can keep it as a friend। लाइफ में तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन शायद रहता है, प्रॉब्लम्स तकलीफें तो रहता ही है, और जो हमारा अनुभव रहा है, सो इफ़ यू जस्ट लुक एट द डिवाइन लाइट इवन फॉर 5 minutes, यू विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू एक्सपीरियंस अ शिफ्ट, यू विल ऑटोमेटिकली फील वेरी वेरी पीसफुल। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, यू कैन जस्ट लुक एट द डिवाइन लाइट एंड एक्सप्रेस इट टू हिम। द मोमेंट यू एक्सप्रेस इट आउट, देन यू सी थिंग्स चेंजिंग फॉर यू ना। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। सो सोडी जी विल बी एट द एग्जिट डोर। So in case you want to take your divine light, na, you'll be able to experience that magic in your lives। Na? Okay, so once again on behalf of the entire Maitribodh Parivar, on behalf of Maitreya Dadashri ji and the entire team, I express my humble gratitude to you for joining for the session, for participating in the session, and we really hope कि इसके through आपकी लाइफ में कुछ तो एक positive shift आए, and we hope to see you again soon। Thank you so much। Thank you so much, sir. It was really amazing session. And especially this Shakti Prabha session, we all enjoyed it and we all really felt so good. Thank you so much, sir. For rendering vote of thanks. तो हमने टाइम से शुरू किया और टाइम से ख़त्म किया ना। और मैं देख रहा था, थैंक्स टू प्रवेश जी, इन्होंने आप सबको एंगेज रखा, इन्वॉल्व रखा, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हालांकि स्टोरी बहुत अच्छी नहीं चली, वो गुड़िया में अटक गई, उसको और अच्छा बना सकते थे। बट आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक मैत्रेय प्रवेश जी, जिन्होंने एक बिल्कुल स्ट्रेंज, हमारे बच्चों से उनका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, बट स्टिल ही कुड कैरी ऑन। बहुत अच्छे से इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स से और हमारी फैकल्टी से कनेक्ट किया। बहुत प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव सेशन, इनके लिए एक बार जोरदार ताली कर दीजिए आप। इनके सपोर्ट में सोडी जी जो सब मॉनिटर कर रहे थे, उनके लिए भी एक बार धन्यवाद रूप ताली बजा दीजिए। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ कि सेशन के पीछे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, हमारी सीईओ मैडम डॉक्टर रोहित, जिन्होंने अभी आपको कूपन दिलवाया है, और हमारे प्रो वाइस चांसलर जी उधर बैठे हैं। ये मैनेजमेंट पूरा इसके पीछे खड़ा हुआ था, तभी ये सेशन हो पाया, उनके लिए भी धन्यवाद है। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद है हमारे हैंडसम डायनेमिक डॉक्टर पिंटू मिश्रा जी के लिए, और इनकी हैंडसम टीम, ब्यूटीफुल टीम के लिए,
जिसमें डॉक्टर भावना ग्रोवर हैं, नेहा जी हैं, बहुत सब लोग बड़े अपने आर्ट के हिसाब से सब लोग बड़े खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। और इन्होंने बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम हमें दिया, वंदना करी। तो ऑल थैंक्स टू डॉक्टर पिंटू एंड हिज टीम, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू द ऑल HOIs जिन्होंने पूरा टाइम दिया। थैंक्स टू द IT टीम, विवेक तिवारी जी वो यहाँ नहीं है, आप पहुँचा दीजिएगा उन पर। और उनकी टीम ने इतने अच्छे से इतना बढ़िया IT का प्रेजेंटेशन किया। थैंक्स टू मास मीडिया, अभी संजय जी शूटिंग कर रहे थे जब हम मेडिटेशन ले रहे थे, मास मीडिया जो रिकॉर्ड करने वाले हैं। उसके अलावा थैंक्स टू द MC मैडम जिन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने किया। और मैं समझता हूँ अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो आप याद दिला दीजिए मुझे। थैंक्स टू ऑल एंड एवरीवन। और हाँ ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को तो थैंक्स है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए।